Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. करना चाहूंगा। नमस्कार दीदी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। जय माता दी। जय माता दी संजीव, नमस्कार। और हमारी रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Listeners and the viewers, listeners of Radio Zindagi, that you're listening to this show live on Radio Zindagi, 7:40 a.m. New York, New Jersey, Connecticut, 100.7 FM. That's up in Suffolk County. Then 1310 a.m. up in Parsippany, Morris County, New Jersey, and 96.7 FM in Edison, Middlesex County. RadioZindagi.com. That's where we stream live 24/7, and Radio Zindagi app for iOS and Android. You can also watch us live on Radio Zindagi's Facebook page, which is Radio Zindagi Tri-State. In this show, Divine Vastu Talk Show, Rewa ji jo hai authority when it comes to Vastu, over 30 years of experience, her experience, her knowledge, and her understanding of Vastu. And what she shares with us every week on Radio Zindagi, it's extremely valuable, very, very important. And Vastu, as you know, is all about 4 directions: east, west, and north, south. But how to keep balance between all the directions, and how to keep positive, as much as possible, positive energy flowing through directions, that's very, very important. रेवा जी, आज मैं इस बात से शुरू करना चाहूँगा कि दीपावली is about 1 week away. Next week is going to be दीपावली week. And जैसे कहते हैं ना कि दीपावली जब आने वाली होती है, एक हर्ष, एक उमंग, एक उल्लास तो होता है, लेकिन उसके साथ साथ घर में सफाई करना बहुत जरूरी है। और जब आप घर में सफाई करते हो तो जो चीज़ें जो ऐसी हो जिसका आपको यूज़ नहीं है या अननेसेसरी होती है, तो उसको डेफिनेटली फेंक देना चाहिए, बिकॉज उससे एक तो घर थोड़ा अच्छा हो जाता है, दूसरी बात ये कि डीक्लटर करने से पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो why decluttering in a house is very important as per ancient Vastu? बिल्कुल संजीव, आपने सही कहा। इट इज ट्रू। हम लोग ये सोचते हैं, एक हमारे साइकोलॉजिकली भी आप ले लीजिए, स्पिरिचुअली भी ले लीजिए, हर तरीके से ले लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ एक हमारे हिंदू धर्म में दिवाली के लिए हो, किसी भी रिलीजन में हो, जब भी कोई भी फेस्टिवल सीजन आता है तो नेचुरली हर कोई अपने घर की क्लीनिंग करना चाहता है टू गेट मोर पॉजिटिव एनर्जी। दैट इज समथिंग सेपरेट। दिवाली पे शुरू से ही एक बना हुआ है, कहते हैं कि जी लक्ष्मी का हम आह्वान करें, लक्ष्मी जी को हम अपने घर पे बुला रहे हैं। तो जब लक्ष्मी कहाँ आती है, क्योंकि जहाँ पे सफाई होती है, जहाँ क्लीनिंग होता है, जो सब कुछ होता है, ये तो एक हिस्सा बना ही हुआ है ताकि दिवाली से पहले लोग सफाई करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू वास्तु अगर हम देखें तो हमारे को दिवाली क्या, हमारे को पूरा साल ही आपको क्लीन करना है। जब तक आप अपने घर को या अपने बिजनेस स्पेस उसको डिक्लटर नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर की नेगेटिविटी भी डिक्लटर नहीं होगी। क्योंकि जो हमारे अंदर क्लटर है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, वो नेगेटिव थॉट्स कैसे आती हैं, जो हमारे साइड में सराउंडिंग्स है, हमारे एनवायरनमेंट है, उसके साथ जुड़ी हुई होती है। तो आपको इस समय, एक तो ये है ही है कि दिवाली का समय है, फेस्टिवल सीजन है, सिर्फ आप दिवाली को ही मत लीजिए। जैसे ही दिवाली होगी, दिवाली के बाद में थैंक्सगिविंग आएगा, थैंक्सगिविंग के बाद में क्रिसमस आएगा, क्रिसमस के बाद में न्यू ईयर आएगा, तो हर तरह के रिलीजन के लोग हमारे साथ होंगे। तो हर किसी को इस समय डिक्लटर करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे डिक्लटर होगा, वैसे वैसे नेगेटिविटी भी बाहर निकलेगी।
अब घर के लिए कभी भी आप देखिए कि अगर आपका घर में इतना क्लटर है कि जैसे कि आप कह सकते हैं, अपने बेडरूम से ही हम लेके चलते हैं कि आपका बेडरूम है, आपके बेडरूम में अगर मॉर्निंग में अगर आप बहुत ज्यादा क्लटर करके रखे, अपने काम पे जाते हैं और कुछ सेटअप नहीं करके जाते, वहीं पे आपके कई लोगों को बहुत आदत होती है कि बेडरूम में ही खाना है पीना है, दैट इज टोटली रॉन्ग, साइंटिफिकली ऑल्सो रॉन्ग, बिकॉज जो जूठन होती है, जो जूठा बर्तन होता है, वट एवर यू लेफ्ट ओवर देयर, वो एक नेगेटिविटी से, बैक्टीरिया से हो जाता है, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपने रूम में कहीं अपने कपड़े चेंज किए ऐसे ही रख दिए हैं, शूज जो कि हम हमेशा कहते हैं कि बेडरूम में नहीं उतारना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, अगर वो सब कुछ होगा तो क्या होगा, जब दिन भर का काम करके शाम को अगर आप अपने घर में आएंगे और बेडरूम जो साउथ वेस्ट है, जो हमारे को एक रिलैक्सेशन की जगह है, जो हमारे को एक पॉजिटिविटी देती है, क्योंकि हमारी पूरे दिन की कॉस्मिक एनर्जी हमारे साउथ वेस्ट में इकट्ठी होती है, तो उससे क्या होगा संजीव, जैसे ही आप आएंगे घर में सब बिखरा हुआ देखेंगे तो आपको और भी ज्यादा नेगेटिविटी मिलेगी, आपको और भी ज्यादा स्ट्रेस मिलेगा। तो बहुत देखा है, जहां जहां पर स्टडी की है, साइकोलॉजिकल भी स्टडीज किया गया, उसके साथ साथ में वास्तु प्रिंसिपल्स को भी अगर देखें तो अगर हमारे बेडरूम में क्लटर भरा होगा, जैसे कि सब कुछ बिखरा हुआ है, कई बार मैं जब विजिट करती हूँ मैं देखती हूँ लोगों के घर पे कि उनके बेडरूम में इवन की शीट्स भी, बेड शीट्स है वो उबड़ खाबड़ है, कहीं कुछ नहीं किया हुआ, बाथरूम है सब कपड़ा गंदा ऐसे पड़ा हुआ है, बाल बिखरे, तो उससे क्या है, आप हमेशा एक स्ट्रेस में रहेंगे, बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस रहेगा, कहीं आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं लेंगे, और हमेशा हर थॉट्स के साथ में आपकी एनर्जी जुड़ी आपके ब्रेन के साथ में। उससे क्या होता है, जब आपको नेगेटिविटी है तो आपको पॉजिटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आप डिसीजन सही नहीं लेंगे, जिसकी वजह से आपको लॉसेस आएगा ही आएगा, या आप हाइपर हो जाएंगे, आर्गुमेंट्स आएंगे। आपके मेन घर में, जैसे मेन एंट्रेंस डोर में, जैसे कि अगर आप घर में एंटर कर रहे हैं, मेन एंट्रेंस डोर पर बहुत ही ज्यादा कई बार देखते हैं कि स्पाइडर वेब्स की जाले लगे हुए हैं, घर में एकदम एंटर करते जूते उल्टे सीधे बिखरे पड़े हैं, सब गंदा ही गंदा है। उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि योर मेन एंट्रेंस इज माउथ ऑफ योर हाउस, वो आपको चेहरा है, आपका जो एंट्रेंस डोर है वो आपके अंदर की सारी चीज को बताता है। अगर आप कभी भी किसी को देखें तो आपको उसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि वो खुश है या वो उदास है, या उसके अंदर में क्या फीलिंग्स है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई फेस रीडिंग नहीं कर सकता। उसी तरह से वास्तु के मुताबिक में ही क्या, जनरली भी अगर आप देखें कि अगर आपका एंट्रेंस डोर गंदा होगा, सही नहीं, क्लीन नहीं होगा, या वहां जूते बिखरे हुए हैं या कुछ टूटा सामान पड़ा है, तो इसका मतलब कि उसके घर के अंदर में जो लोग रह रहे हैं वो किसी बहुत अनहैप्पी लाइफ को गुजार रहे हैं, सैडनेस की तरफ से निकल रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि हमेशा अपने आप को डिप्रेशन में लेकर बैठे हैं। तीसरा आता है, आप किचन की तरफ में देखिए। हाँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि रात को किचन को बिल्कुल क्लीन करके सोना चाहिए। किचन में रात को अगर आप कभी भी जूठे डिशेस रखते हैं, गंदी डिशेस रखेंगे, तो मॉर्निंग में, चाहे आप उसको मॉर्निंग में साफ करें, लेकिन रात भर की जो उसके अंदर नेगेटिविटी होती है, जो नेगेटिव एनर्जी है, वो इतनी ज्यादा इनहेंस करती है कि साउथ ईस्ट जो कि वीनस एलिमेंट से रिलेटेड है, साथ ही साथ वो आपके पैसे से भी रिलेटेड है, वो फायर एलिमेंट है। उससे क्या होगा, आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली लॉसेस आएंगे। जब भी रात को अगर आप डिशेस को क्लीन करके नहीं सोते हैं, किचन को क्लीन करके नहीं सोते हैं, तो वहां पर ऐसे फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। बाथरूम के बारे में बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने बाथरूम को प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, या टॉयलेट सीट को अगर क्लीन नहीं करते हैं, वहां क्लटर बना है, क्लटर यानी कि जैसे कि कह सकते हैं कि कई बार एम्प्टी बॉटल्स होती हैं, कई लोगों को बहुत शौक होता है कि एम्प्टी स्टफ को रखने का, वैसे ही आदत होती है कि रखना है रखना है रखना है। मैं एक सिंपल सा सवाल कर रही हूँ, अगर हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स देख रहे हैं, कि कभी आपने देखा है कि आप चाहत रखते हैं कि मैं फलाने की तरह, टाटा बिरला की तरह अमीर हो जाऊं, अंबानी की तरह हो जाऊं, बिल क्लिंटन की तरह हो जाऊं? Yes, I do respect your dreams. I respect your feelings. I respect your ambitions. लेकिन क्या कभी आपने ये भी देखा है कि उन्होंने टूटा फूटा सामान अपने घर में रखा है कभी? क्या? Because they are having a very high thoughts. I just want to convey my message to all my viewers and listeners कि अगर आप डंप करके कुछ रखते हैं तो वो आपको कभी मिलियनेयर बनने की मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे।
आपको वैसे ही अपनी थॉट्स रखनी है जैसे उनकी थॉट्स हैं। आपको वैसे ही अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी लेकर आनी है कि आप वैसे ही लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। जिस लग्जरी लाइफ में एम्प्टी बॉटल्स नहीं होने चाहिए, कंटेनर जो टूटे फूटे हैं वो नहीं होने चाहिए, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर क्लटर इन योर लाइफ। ये आपकी जिंदगी का क्लटर है, जहां पर अगर आप टूटी बॉटल्स को, टूटे फूटे बर्तन को, डेड इलेक्ट्रॉनिक्स को रखते हैं जो कि आपके काम की नहीं है, लेकिन फिर भी आपने उनको रखा है, उसमें क्या आप कर रहे हैं? सामने से तो आप क्लीनिंग कर देंगे, लेकिन उसके बीच में जो छुपी नेगेटिविटी है वो आपके ऊपर उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। और वो क्या है? दैट इज हिंड्रेंस इन योर ग्रोथ। वो आपकी हर तरह की, चाहे वो मेंटली, फाइनेंशियली, फिजिकली, हर ग्रोथ में एक हिंड्रेंस लेकर आती है वो नेगेटिविटी। आप अगर अपने ऑफिस में और देखते हैं कि ऑफिस में आपको अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ में स्ट्रेस मिल रहा है, तो इट मींस कि आपके ऑफिस टेबल में आपने कहीं सही ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ। जैसे कि आजकल तो इतना लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि अगर आप चाहें तो आप अपने कंप्यूटर में सब कुछ रखते हैं, लेकिन कंप्यूटर को भी तो क्लीन करना है, वहां पे भी तो स्पैम आता ही है, वहां पे भी तो आपको ट्रैश का एक कॉर्नर बना हुआ है। बनाने वाले ने जिसने कंप्यूटर बनाया उसने भी वहां ट्रैश आपको दिया है। वर्ड मींस कि जिसको आप नहीं चाहते आप उसको ट्रैश कर दीजिए। लेकिन हम लोग आज भी उसी शेल के अंदर हैं कि नहीं, शायद ये टूटी बोतल कहीं काम आ जाए, शायद ये टूटा डिब्बा हमें फेडेक्स करने के काम आ जाए। मैं इस चीज को कहना चाहती हूँ कि ये सब ये क्लटर है आपकी लाइफ का। आप इन नेगेटिविटी से बाहर निकलिए। दिवाली आ रही है, बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप 365 दिन भी दिवाली मना सकते हैं। और उसको मनाने का तरीका है कि अगर आपके घर में कहीं पे भी क्लटर नहीं हो। इसी क्लटर में मैं एक डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं इट्स अ वेरी ओल्ड केस, जब भी मैं इसमें बात करती हूँ तो मैं वो ये बताना चाहती हूँ। एक बार मुझे किसी क्लाइंट ने बुलाया अपने घर पे, संजीव, जब मैं वहां विजिट करने के लिए गई हूँ, एंट्रेंस करते ही यू वोंट बिलीव इट कि इतनी बुरी हालत थी वहां पर कि किचन में ऐसे लग रहा था कि शायद उन्होंने किचन का कुकिंग स्टोव जो था सब्जी गिर गिर के जल के आ गया था, कि जो जले हुए की लेयर्स बन गई थी। जब उनके, मैं किचन के डाइनिंग टेबल के पास में मैंने देखा, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रही हूँ, उस डाइनिंग टेबल के ऊपर में पिछले 10 साल के पेपर्स ऐसे बिखरे हुए थे कि शायद वो पेपर्स के ऊपर ही रख के खाना खा लेते थे, कि वो पेपर्स में से खाने के दाग, स्मेल, हल्दी के दाग लगे हुए थे। एक उनके पास में चेयर थी, उनके फादर की चेयर थी, उनकी फादर की चेयर पे मैंने देखा तो वो इतनी फट गई थी, और उनके उसी चेयर के ऊपर में पपी ने सारा गंदगी किया हुआ था। जब मैं उनके बच्चे के बेडरूम में गई हूँ तो मैं क्या देखती हूँ कि बच्चों के कपड़े ऐसे बिखरे हुए थे कि शायद बच्चे सुबह तैयार होने के वक्त में आधा घंटा जरूर लगाते होंगे कि उनको इस कपड़े से कपड़ा मिलाने के लिए, कि क्या मिले, कि कोई धुला हुआ है कि कोई साफ है। ये बताना चाहती हूँ कि जिसके, और उस घर में lots of problems and issues were there, and what I said, मैंने उनसे एक ही कहा कि मैं अपना कंसल्टेशन फीस भी नहीं लूंगी, मैं इसमें कुछ वास्तु नहीं कर सकती, कोई वास्तु आपका काम नहीं देगा जब तक आप डिक्लटर नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आपकी क्लीनलीनेस ही नहीं है, अगर आपने उस क्लटर को इकट्ठा रखा हुआ है, तो क्या है कि हमने डेड चीजों को अपने साथ रखा है। भगवान नहीं करे किसी की डेथ होती है, आप एक चीज देखिए, क्या हम डेड बॉडी को ज्यादा से ज्यादा एक दिन अपने पास घर में रखते हैं, उसको भी विदा करने की कोशिश करते हैं। सो व्हाट द थिंग्स व्हिच आर डेड इन योर लाइफ, यानी कि जो खत्म हो चुकी है, इवन कि अगर आपके गार्डन में आप देखिए कि कोई पॉट्स हैं, फ्लावर पॉट्स, अगर देखते हैं कि उसमें नहीं फ्लावर यूज कर रहे, वो टूट गए हैं, तो एटलीस्ट आप उनको क्रश करके आप अपनी मिट्टी के साथ मिला के रख सकते हैं, बट डोंट मेक इट ऑल टुगेदर। उनको आप स्टोर करके नहीं रखिए कि टूटे गमले शायद आपको काम आएंगे, वो किस लिए काम आएंगे हमको। क्योंकि अगर जितना भी आप अपनी जिंदगी में क्लटर इकट्ठा करेंगे व्यूअर्स, लिसनर्स, उतनी ही हमारी लाइफ में फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह की, इमोशनली, हर तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। सो दिस इज अ राइट टाइम टू डिक्लटर योर लाइफ। जैसे जैसे डिक्लटर करेंगे आपके हर तरह की प्रॉब्लम का सोल्यूशन खुद बे खुद ही मिल जाएगा।
दीदी आपने जिस तरह से बताया समझाया बिल्कुल आई मीन राइट ऑन द डॉट जैसे कहते हैं ना बिल्कुल ऐसे ही समझाया एंड जो एग्जांपल आपने दिया इट जस्ट baffles me that how can someone or a family of 2 or 3 or 4 live in that kind of condition in the house. It's just unbelievable and I think for that family you must be a god sent person जिसने जाके ये एडवाइस दी कि पहले ये सब कर लो फिर बाद में हो सके तो मुझे फोन करना लेकिन ये करने के बाद आपकी परेशानियां हो सकता है कि दूर हो जाएगी बट पहले completely clean your house. This is amazing. Anyway, listeners of Radio Zingi right now on Radio Zingi's all 4 frequencies on the East Coast as well as on Radio Zingi's Facebook page, which is Radio Zingi Tri-State. Currently, what you are listening is Divine Vastu Talk Show with Dr. Reva Kumar, Vastu Shastra expert and a consultant of worldofdivinevastu.com. जैसे मैंने कहा कि दिवाली is next week, literally 1 week away. और दीदी दिवाली के दिनों से पहले जो क्लीनिंग होती है वो एक इम्पोर्टेंट क्लीनिंग होती है बाकी तो क्लीनिंग थ्रू आउट द ईयर होती रहती है पर दिवाली से पहले बेसिकली जैसा आपने कहा कि माँ लक्ष्मी का आगमन होता है तो हम चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो घर में खुशी का एक हर जगह पे खुशी फैली हुई हो तो माँ लक्ष्मी वहीं पे आए और दिवाली की पूजा हो सब कुछ तो मैं लिसनर्स को बताना चाहता हूं कि इस वक्त जो बात कर रहे हो और रेवा जी जो हमें समझा रहे हैं वो डिक्लटरिंग के बारे में क्योंकि व्हाई डिक्लटरिंग योर हाउस इज इम्पोर्टेंट इन द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड दैट्स एग्जैक्टली रेवा जी हमें बता रहे अच्छा जब डिक्लटरिंग की बात आती है तो कोई ऐसी स्पेसिफिक डायरेक्शन है दीदी चाहे ईस्ट हो या नॉर्थ ईस्ट हो या वेस्ट हो कि जिसको आपको बिल्कुल हो सके इतना लाइट रखना है ऑफ कोर्स बिल्कुल संजीव हमारे को नॉर्थ ईस्ट को बिल्कुल आप कह सकते हैं कि क्लटर फ्री नीट एंड क्लीन रखना है यहाँ तक कि आप नॉर्थ ईस्ट में जूते भी नहीं रखिए क्योंकि वहां से हमारी जो एनर्जी ट्रेवल करती है बिल्कुल क्लीन रास्ता उसको मिलना चाहिए आप अपनी मंजिल की तरफ जब जाते हैं तो आपको बिल्कुल क्लीनलीनेस चाहिए कहीं रास्ते में हिंड्रेंस नहीं चाहिए और जहां आपको हैवी करना है नॉर्थ ईस्ट से जब हम साउथ वेस्ट की तरफ आते हैं साउथ वेस्ट को आप हैवी कर सकते हैं वहां आप अपना स्टोरेज भी बना सकते हैं लेकिन स्टोरेज भी आप उनको चीजों को बनाएंगे जो चीजें आप यूज करना चाहते हैं जो आपके काम की चीजें हैं वहां पर जैसे कि मैंने बताया ये नहीं है कि उठाया क्लटर उठा के वहां रख दिया कि चलिए जी गैराज अगर साउथ वेस्ट में उठाए क्लटर रख दें नो द थिंग्स विच यू थिंक दैट यू वांट टू यूज इट हाँ जी आप सीजन में कर सकते हैं सपोज कर लीजिए आप दिवाली पे लाइट्स लगाते हैं बिल्कुल सही जगह है आपके पास में साउथ वेस्ट में जगह है साउथ ईस्ट में अगर स्टोरेज आप वहां रख सकते हैं नॉर्थ वेस्ट है हमारा एयर एलिमेंट जो हमको डिस्पोज ऑफ करता है किसी भी तरह को डिस्पोज ऑफ मीन कि सपोज कर लीजिए कि आपके पास समय नहीं है कुछ चीजों को इमीडिएटली निकालने का या कुछ डेड चीजें हैं जिसके लिए आपको टाइम चाहिए और आप अभी बाहर नहीं रख सकते यू आर बिजी दैट आई डू अंडरस्टैंड कि यहाँ की लाइफ में हम बिजी हैं तो आप उनको एज इट इज उठाकर नॉर्थ वेस्ट में रख सकते हैं अब जैसे कि कई बार होता है कि हमारे को जैसे टैक्स जाना हमको आईआरएस में टैक्स देना है एनी टाइम वी कैन नीड बिजनेस वालों को डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है जर्नल भी अगर हो तो आपको अपनी रिसिप्ट्स की जरूरत पड़ सकती है आप उसको अगर मंथली भी उन रिसिप्ट्स का आप डॉक्यूमेंट्स को एक कंटेनर बनाइए चाहे एक बॉक्स बना लीजिए यू कैन राइट ऑन अबाउट द ईयर एवरीथिंग मंथ और वट एवर यू लेट इट बी इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ताकि नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो हमारे आईआरएस से जुड़ी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है तो आपके ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो हमारे पेएबल बिल्स होते हैं रिसिप्ट्स होती हैं इन सब को हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेके रख सकते हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट हैज टू बी प्रॉपर्ली क्लीन अगर आप सोचते हैं कि जैसे कि आपको फायर से रिलेटेड कोई स्टफ रखना है या हमारे को पेंट्री में कुछ स्टफ हमारा एक्स्ट्रा है तो हमारे को साउथ ईस्ट कॉर्नर हमारा बहुत अच्छा है क्योंकि वो खाने से अगर पेंट्री होगा खाने से जुड़ी है फायर से जुड़ी चीजें हैं लेकिन वहां पर हम वाटर स्टोरेज नहीं कर सकते वाटर स्टोरेज करने के लिए हमारे को साउथ ले सकते हैं क्योंकि आपको वहां वाटर बॉटल्स हैं कुछ है तो आप उस साउथ में रख के उसको हैवी कर रहे हैं वो वाटर आपको कोई जमीन में नहीं कर रहे हैं हमको गार्डन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको भी हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ में ज्यादा से ज्यादा स्टोर कर सकते हैं पर फिर एक बार कि सभी चीजें वर्किंग होनी चाहिए डेड नहीं होनी चाहिए जंग नहीं लगा होना चाहिए अगर कहीं पे भी हम गार्डन का सामान है या कुछ भी गार्डनिंग है किसी चीज को टूल्स हैं कुछ है अगर उसके ऊपर में बहुत ज्यादा रिस्क लगा हुआ है और अगर हम उसको साउथ ईस्ट में रखेंगे तो घर में फीमेल्स को स्पेशल फीमेल्स को बहुत ही ज्यादा आईज से जुड़ी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं
आंखों से जुड़ी आ जाती है। अगर हम नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में स्टोरेज सामान रखते हैं जो कि बिल्कुल डेड है और हम उसको बार बार उसको यूज करना चाहते हैं जो कि टूटा फूटा है, तो वहां पर एक्सीडेंट्स या ऐसी प्रॉब्लम्स आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको ऑर्गेनाइज करना है। सेम आप अपने ऑफिस का टेबल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं प्रॉपरली। इट हैज टू बी वेल, ताकि आपको मालूम हो कि आपके क्लाइंट्स की फाइल्स कहाँ हैं। जो क्लाइंट्स आप ग्रो करना चाहते हैं उनकी आप एक अलग कैबिनेट बना सकते हैं कि साउथ वेस्ट के बीच में रखें। जहां आपको बिल्स पे करने हैं, लेट इट बी ना साउथ ईस्ट डायरेक्शन। उससे आपको मैनेज करने में भी अच्छा रहेगा, प्लस आपका बिजनेस, आपका काम भी बहुत ग्रो करेगा। Indeed, very well. Listeners, if you ever want to reach out to Dr. Riva Kumar, you can do so. Her number is 510-868-3338. That's a 510-868-3338. Any kind of Vastu consultation in person, Vastu consultation on Facebook, on Zoom, everything is possible. And any question that you have related to Vastu, or how do you want to take care of your house, decluttering, anything, do give her a call at 510-868-3338 and talk to her, and she will guide you in the right direction. And may this new year, the beginning of Deepavali, and then after that, may that bring a peace and prosperity for you and every single member of your family. अच्छा दीदी, अब थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। दीपावली जो नेक्स्ट वीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो दिवस होता है वो है धनतेरस। धनतेरस के दिन हम सब माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो मैं चाहता हूँ एंड में आप जो हमेशा पूजा को बहुत महत्व देते हो, आप रेगुलरली पूजा करते हो, तो धनतेरस के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, धनतेरस के दिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ टिप्स बताइए प्लीज पूजा करने की। जी बिल्कुल संजीव, मैं जरूर बताना चाहूंगी। और एक ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे रेडियो जिंदगी का मैं शुक्रिया भी अदा करती हूँ कि फिर मेरे को मौका दिया जा रहा है नेक्स्ट वीक धनतेरस के लिए, दीपावली के लिए, थर्सडे फ्राइडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे अपने सभी लिसनर्स के साथ जुड़ने के लिए। एंड आई एम ग्रेटली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू सुनील जी, नीरज जी एंड संजीव, 3 of you, कि आपने मुझे फिर मौका दे रहे हैं। और उम्मीद रखती हूँ कि हमारे व्यूअर्स, लिसनर्स इसको बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और एंजॉय करेंगे। अब आ जाता है दीपावली, धनतेरस। देखा जाए तो दीपावली हमारी 5 दिन का त्योहार है ही है, जिसको हम लोग धनतेरस से स्टार्ट करेंगे। तो धनतेरस आ रही है 12 नवंबर, 12th नवंबर। 12th इज अ धनतेरस, 13th नवंबर इज अ छोटी दिवाली, 14th नवंबर इज बिग दिवाली, और उसके बाद 15th इज जिसको हम लोग कहते हैं कि गोवर्धन पूजा, और 16th आती है हमारी भैया दूज। ये 5 दिन का फेस्टिवल होता है कि जिसे बहुत इस महीने में मनाया जाता है। स्पेशल इसके लिए क्योंकि धनतेरस, पहले तो हमको ये देखना है कि धनतेरस कि जो धन बरसे। हर किसी को पैसे की जरूरत है, फाइनेंशियली जरूरत है। अब फाइनेंशियली ट्रेजर कौन थे किसी समय में जब लक्ष्मी जी को धन की जरूरत थी? दैट वाज कुबेर जी। तो कुबेर जी की पूजा की जाती है क्योंकि उनकी पूजा से ही आगे लक्ष्मी पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले लिसनर्स, कुबेर को आपके अपने स्थान पे, अपने पूजा के स्थान में नॉर्थ डायरेक्शन में उन्हें जरूर दीजिए कि अगर आपकी जो भी पूजा का स्थान होगा उनकी, या अगर पूजा के स्थान पे नहीं तो नॉर्थ की वॉल पे भी अगर आप कुबेर जी की बैठी हुई पिक्चर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। ये तो था जो कुबेर जी ने लक्ष्मी जी को धन दिया। लेकिन आज के वक्त में आपको धन कौन देता है? आपको धन देता है आपका खुद का अपना काम, वही कुबेर है। जैसे कि आप है संजीव जी, आप इतना अच्छा मार्केटिंग का काम करते हैं, आप इतने अच्छे आरजे हैं, आप प्रमोट कर रहे हैं, इट मींस दिस इज योर वर्क। तो आपका ये काम आपका कुबेर है। अगर कोई टीचर है, कोई प्रोफेसर है, तो उनकी नॉलेज ही उनका कुबेर है। अगर कोई ग्रोसरी स्टोर देता है तो उनका जो ग्रोसरी से रिलेटेड खाना पीना दाना जो है वो उनका कुबेर है, क्योंकि वो उनको पैसा देता है, वो उनको धन देता है। तो ये मैं अपने सभी व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि धनतेरस पे आपको, धनतेरस के दिन जिस समय आप पूजा करें मुहूर्त के साथ में, जो कि मैं आपके साथ वेडनेसडे को शेयर करूंगी, जब आप थर्सडे को धनतेरस की शाम के समय पूजा करें तो आपको कुछ चीजें अपने दिमाग में जरूर रखनी है, और कुछ सामान जरूरी होता है जो खासकर 2020 जो राहु का साल है, राहु प्लेनेट से जुड़ा हुआ है, जहां पे हमने काफी चीजें फेस करी हैं। क्योंकि
जो राहु होता है संजीव, वो आपको राजा से रंग भी बनाता है और रंग से राजा भी बनाता है, दोनों साइड में आपको फायदा देता है। वो ऐसा है, आपको बहुत नाम देगा, मीडिया में नाम भी देगा, सब कुछ देगा, दूसरी तरफ वो आपको बदनामी भी दे देता है। तो हम राहु के नेगेटिव उसके इफेक्ट्स को खत्म करके कैसे पॉजिटिव इफेक्ट्स लेकर आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु दैट इज रिलेटेड विद साउथ वेस्ट, बिकॉज राहु प्लैनेट ऑलवेज स्टेज इन साउथ वेस्ट ऑफ योर हाउस। कोई भी हो, चाहे वो आपका घर हो चाहे मेरा घर हो, वो आपके साउथ वेस्ट में होता है। तो धनतेरस के दिन में आपको जिस समय पूजा करनी है, तो सबसे पहले आप अपनी उस जगह के ऊपर में पीले कपड़े का, क्योंकि थर्सडे के दिन आ रहा है, येलो कपड़े को जरूर से जरूर जगह दीजिए। ये है आपको आपके अपने कुबेर से पैसा पाने का रास्ता, कि जो कुबेर हमारा स्थान है, जो हमारा बिजनेस है। अगर सपोज के लीजिए आप आईटी के अंदर में, तो आईटी का क्या है, या तो आपके उससे जुड़े जो भी आप अपना प्रोडक्ट बनाते हैं वो गया, या आपके कंप्यूटर से जुड़ी कोई चीज है, तो आप पर्टिकुलर उस चीज से लेंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट आपका लोगो, क्योंकि आपका अपना नाम, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका लोगो ही आपकी पहचान है। जो हम कहते हैं कि रेडियो जिंदगी से संजीव बोल रहे हैं, संजीव है आरजे है, बिकॉज संजीव को रेडियो जिंदगी की नाम से जो उनके कुबेर हैं वो रेडियो जिंदगी का नाम है। तो आपको उससे जुड़ा आपको वो विजिटिंग कार्ड लेना है। तो आप अगर विजिटिंग कार्ड नहीं है तो आप व्हाइट कलर के पेपर पे येलो कलर के मार्कर से, येलो कलर की इंक से, येलो कलर के किसी स्केच पेन के साथ में भी वो नाम लिख सकते हैं। और जहां पर आपको अपनी पूजा की स्थान जगह बनाएंगे तो वहां पर आप इसको जरूर से जरूर रखिए। इसके साथ ही आपको क्या रखना है, एक मुट्ठी कोरिएंडर सीड्स, जिसको हम बोलते हैं साबुत धनिया। धनिया को मैं फिर बताऊंगी, धनिया मीन्स कि धन लेकर आ, धनिया का मीनिंग है धन लेकर आ। खास तौर पे दिवाली के कुछ दिन पहले ही अगर आप गार्डनिंग करते हैं और अगर अपने घर में धनिया लगाते हैं और धनिया के अगर थोड़े से पत्ते भी बाहर आते हैं, तो ये सोचिए कि माँ लक्ष्मी आप पे बहुत प्रसन्न है। दैट इज अ धनिया, उसका नाम यही लिखा है। तो कोरिएंडर सीड्स का, फ्रेश कोरिएंडर सीड्स लाइएगा, घर का यूज कोरिएंडर सीड्स बिल्कुल नहीं लीजिएगा। अब आपको लेना है कोरिएंडर सीड्स। कोरिएंडर सीड्स के साथ में आपका लोगो हो गया, या उससे जुड़ा, अगर आप नॉलेज के साथ में हैं तो आप अपनी बुक रख सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं तो लॉयर से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड अपनी बुक या लोगो रख सकते हैं। तो आपके कुबेर वो हैं। अगर आप डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स हैं, अपना स्टेथोस्कोप ले लें या किसी मेडिस्कोप, उस चीज को लेके चलेंगे, क्योंकि आप उनसे दिया हुआ धन खा रहे हैं, उन्हीं से आपका लग रहा है। दैट इज योर वैभव, दैट इज योर लग्जरी। वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, आप वो अपना उसके ऊपर में रखेंगे। साथ ही जिसको आप बोलते हैं शुगर केन, गन्ना बोलते हैं, वो बहुत जरूरी होता है। धनतेरस के दिन में अगर आप 2 पीस गन्ने का भी रख देते हैं तो वो आपको, उसको वहां पे पूजा कीजिए। और फिर वही पूजा आप लक्ष्मी पूजन तक 3 दिन वैसे ही पूजन करते रहेंगे। उसके बाद उसको क्या करना है वो हम आपको बताएंगे वेडनेसडे को। बिल्कुल, मैं वही कहने वाला था। हाँ जी, इसके साथ एक टिप बहुत जरूरी है। साउथ वेस्ट में, जैसे कि मैंने बताया, राहु प्लैनेट है आपका, आपको क्या करना है, 13 इज इक्वल टू 4। जैसे कि मैंने बोला 2020 इज द नंबर 4, दैट इज रिलेटेड विद राहु प्लैनेट। सो व्हाट यू हैव टू टेक, आपको पतली 13 व्हाइट स्ट्रिंग्स लेनी है कॉटन की, उनको इकट्ठा फोल्ड कर दीजिएगा तो एक लंबी सी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। उसको मिट्टी के दिए में आप तेल डालकर, और उसको आप घर के साउथ वेस्ट में तेरस के दिन, धनतेरस के दिन जरूर से जरूर जलाइए, क्योंकि धनतेरस इज 13 नंबर और ये आ रहा है थर्सडे के दिन, जुपिटर के प्लैनेट के साथ में, राहु प्लैनेट के साथ में, हर तरह की नेगेटिविटी को आपकी लाइफ में खत्म करने के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी वैल्यूएबल टिप। Listeners, you can always go on the Radio Zingi's Facebook page, which is Radio Zingi Tri-State, and go through the entire video of our conversation today, Divine Vastu Talk with Dr. Riva Kumar. Make a note of it. और जैसा उन्होंने बताया, Wednesday, Thursday, Friday, Deepavali special with Dr. Riva Kumar on Radio Zingi. So Wednesday जब बात होगी तब जो Thursday की पूजा होती है इनके बारे में रेवा जी हम सबको बताएंगे, and that's going to be very very interesting and helpful to you. दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. You take care, stay safe, and we will touch base with you Wednesday right here on Radio Zindagi. Thank you Sanjeev, thank you listeners.
जय माता दी. Jai Mata Di Didi. Take care. With that note, we come to the end of this Divine Vastu Talk Show on Radio Zindagi. Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra